I welcome everyone to the market analysis video up for the past and as well as for the coming week. Last week में क्या हुआ मार्केट में and आगे हम क्या expect कर सकते हैं वो सब मैं analyze करूँगा आपके सामने. I'll analyze it in a very simple way which is easily understandable to all of you. This series will be a different series. Market analysis parallelly हम लोगों के basics के साथ चलता रहेगा so that for the people who are actually trading in the markets they get to analyze and learn new things. So I'll be coming up with a lot of content in this video. ऐसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक को कवर नहीं करूँगा बट फ्यू एनालिसिस like the way I've analyzed the markets and few analysis points which are very important throughout. I'll be covering that in this video. So let's begin with it. Okay, so a while back, I'll come to the Nifty chart. Okay, Nifty. Um, I'll be covering up from the point where I left before, not on my channel. It's basically the videos are on the options matches channel. You can check them out there as well. So now I'll be posting here all of my videos. So yeah, you can somewhere around here, around this point, I clearly said that in the markets we are bottoming out around 15600 levels. So I was expecting everyone to buy equities. The reason behind buying equities was that even if you are unable to capture this move in future and options, you will be in a good 20 or 30% gain in some of the stocks, which are fundamentally very nice from this bottom if you have captured them. I won't say 20-30% सारे stocks में आया, but कुछ stocks में you would have even made 5-10%, 15%, which is a decent return in general. जैसे आप रिलायंस को देख सकते हो, it has rallied like crazy. ऊपर जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है. It is not stopping from the bottom, and the crude oil was spiking as well, but we saw Reliance moving up. So I'll come up with a very simple analysis. I'll show you how this bottom was captured. ये bottom हमने कैसे पकड़ा है markets में in general. देखो ये 15500 5900 का जो रेंज था ना, इसको मैंने पास में भी कहा है. दिस वाज बेसिकली अ ब्रेक, दिस वाज अ जोन जहाँ पे कहीं से भी बाइंग आ सकती थी. ओके, so we just mitigated this part. We tested it once and we showed a massive reversal, and this was practically the bottom of the market. No matter how bearish the people are right now, we are up around we are 2000 points above, up in Nifty, and around 4800 5000 points up in Bank Nifty. So it's not a joke. It's not just a pullback. It's a trend reversal, I would say. So this was the bottom where the bullishness actually started. So this was captured by most of us on our Telegram channel as well. Many people bought futures at this point. A lot of people have made a lot of money just following our analysis. So I will tell you what actually happens in the market. आप वीकली चार्ट देखो, ठीक है. मैं आपको आज एक कंसेप्ट बताऊंगा बहुत अच्छा, ठीक है. वीकली में एक चीज़ का ध्यान रखना. जब भी ये सब बिल्डअप्स होते हैं ना, आप वीकली देखो कितने वीक का कंसोलिडेशन है. ये अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स का कंसोलिडेशन. सो एक बार प्राइस में ये नहीं बोल रहा मुझे यहाँ पता था कि ये लेवल मिटिगेट होगा, बट यहाँ से रिवर्सल आने की काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी. Many people were thinking कि this is a double top, we have broken it on the downside and we will show a breakdown. सबको यही लग रहा था. But I won't be showing my charts with other people, but I have discussed it with a lot of people कि ये डबल टॉप जो है वो सबको लग रहा है इसका एक फेक डाउन आएगा एंड मार्केट विल कम बैक अगेन इनटू द रेंज. फेक डाउन इज बेसिकली अ कंसेप्ट व्हिच आई यूज, दैट इज बेसिकली ग्रैबिंग लिक्विडिटी. ये सब कंसेप्ट्स काफ़ी एडवांस और डेप्थ है इनमें. हम लोग उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इस पर मैं एक सीरीज बनाऊंगा आगे जाके, ठीक है. सो ये सब डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे टाइम टू टाइम. बट अभी आप ये समझना कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था, आई कैन से. सो दिस वाज अ डिमांड एरिया एंड दिस जस्ट गॉट मिटिगेटेड वंस एंड वी सॉ अ मैसिव बाइंग फ्रॉम दिस पॉइंट. नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अब आप ये समझना, ठीक है, बैंक निफ्टी में हुआ क्या है एग्जैक्टली. मैंने पास्ट में काफ़ी सारी एनालिसिस वीडियोस बनाते समय एक कंसेप्ट हमेशा बोला है, आइलैंड रिवर्सल. अब आइलैंड रिवर्सल होता क्या है? आइलैंड रिवर्सल में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. इट इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट कि अगर आपकी एक कैंडल ऐसी है एंड देन यू गेट अ गैप डाउन एंड देन अगेन यू गेट अ गैप अप. दिस इज अ फॉलिंग कैंडल, दिस मे बी अ डोजी और एनीथिंग, इट कैन बी एनी कैंडल, एंड दिस इज द राइजिंग कैंडल. दिस इज बेसिकली द सीरीज ऑफ these इवेंट्स इज बेसिकली कॉल्ड आइलैंड रिवर्सल. नाउ थोड़ा देखो, हर चीज़ चार्ट पे आपको एनालाइज करनी होती है, आपको हर चीज़ दिखेगी नहीं. अब इसमें लोगों को आप वीडियो पॉज करना और आप मुझे बस ये बताना इस पूरे एरिया में आपको कहीं पे आइलैंड रिवर्सल दिख रहा है. अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये गैप डाउन गैप अप ये आइलैंड रिवर्सल नहीं है. बट आप अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो. अगर हम 2 वीक्स की एक कैंडल बनाते हैं, ठीक है, अगर एक वीक की कैंडल लिए 2 वीक की कैंडल को एक मानते हैं हम लोग 2 वीक्स की कैंडल्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो ये कैंडल बनेगी. तो बेसिकली इसके रिस्पेक्ट में ये गैप डाउन है, इसके रिस्पेक्ट में गैप अप है. दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर आइलैंड रिवर्सल. बुकिश लैंग्वेज में आई डोंट थिंक इसको आइलैंड रिवर्सल बोलेंगे,
बट मेरे लिए कंसेप्ट मैटर करते हैं, लॉजिक्स मैटर करते हैं। आइलैंड रिवर्सल स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि बेयर्स ने मार्केट को प्रेस करने की कोशिश की, यहाँ उन्होंने फिर से शॉर्ट किया, बट गैप अप हो गया। गैप अप बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर गैप अप हो रहा है उसके बाद मतलब बेयर्स कवर कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, और यहाँ पे न्यू बायर्स एंटर कर रहे हैं, और जो एकदम मार्केट मेकर्स हैं who actually bring the momentum in the market, they have bought around these levels. So this is known as island reversal. Okay, so this was the point where we saw a great island reversal. At this area, honestly, if you ask me, अगर आप ये देखो, this is a clear demand zone. Okay, very very clear demand zone. ये पूरा एरिया जो था, यहाँ से आपको बाइंग प्रेशर मिला था, और यहाँ से आपको आइलैंड रिवर्सल मिला था। तो ये जो एरिया हो जाता है, बेसिकली मैं इसको एक बॉक्स में मार्क कर देता हूँ। ये जो पूरा स्क्वायर है मेरा, ये एक डिमांड जोन है, इसमें कहीं से भी बाइंग आ सकती है। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है कि इन लेवल्स के अराउंड बाइंग आनी है, ठीक है, आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे और आप रिवर्सल्स का वेट करोगे। यहाँ पे ये स्विंग भी है, दिस वाज अ ग्रेट सप्लाई एरिया, यहाँ से मार्केट ने बहुत मैसिव फॉल किया था, एंड हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि सपोर्ट्स रेजिस्टेंस में टर्न हो जाता है आगे जाके। तो वीकली कैंडल में हम लोग क्यों बुलिश थे इतने टाइम से? सबको डबल टॉप, किसी को ये हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ दिख रहा होगा, बट ये सब नहीं बना, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर आ गया, क्योंकि फंडामेंटली एवरीथिंग वाज फाइन। पीपल वर टोटली इनटू वॉर्स, फाइट्स की, वॉर हो जाएगी, मार्केट ब्रेक हो जाएगा। देखो कुछ नहीं हुआ, अल्टीमेटली शॉर्ट कवरिंग है ये, अगर आप ऐसे सोचो। दिस वाज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ हैंड्स व्हिच हैपेंड बिटवीन पीपल, बिटवीन द इन्वेस्टर्स, ऑल द पीपल हु एंटर्ड आफ्टर कोविड, आई वुड से। आफ्टर कोविड इज बेसिकली यहाँ जिन्होंने एंटर किया, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, ठीक है, आप काफ़ी टाइम से मार्केट में हो, आपने ये देखा है, इसलिए आपने ये भी देखा है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ भी मार्केट में एंटर किया है, उनके स्टॉक्स 30-40% फॉल किए, और वो भी बहुत क्विक स्पैन में। और यहाँ पे सबको लग रहा था मार्केट क्रैश हो जाएगा, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर आई क्लियरली सेड कि स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इक्विटी, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग डाउन, बिकॉज एवरीवन इज थिंकिंग दैट मार्केट्स विल क्रैश। Okay, and that's how market makers work, the big institutes work. They start buying at those positions. So it was exchange of hands between the big investors. That is the reason they got the deal. Because उन लोगों ने अगर यहाँ buy करके रखा है, investors ने, बड़े investors ने, ये levels उनके लिए और अच्छे हैं ऐड करने के लिए, वो लोग कभी भी ट्रैक्सेस में buy करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करते। अभी मैं आपको वीकली कैंडल मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं थोड़े दिन कल की ही बात है, कल की ही मैं काफ़ी टाइम से इनफैक्ट बोल रहा हूँ, बट कल मैंने बोला था अपने कम्युनिटी में कि, एंड मैंने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह ये मैसेज डाला था कि स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बैंक्स। क्यों मैंने ये कहा था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब एक सिंपल चीज़ समझना कि 1 आवर टाइम फ्रेम देखो बैंक निफ्टी, देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब आंखों के सामने होता है, ठीक है ना, सब कुछ। आपको ये सारे कंसेप्ट पता है मैक्सिमम लोगों को। अब ये समझना, ठीक है, पहली बात तो वो डिमांड जोन था, इसलिए हमने वहाँ से बाउंस किया, ये मैंने आपको बता दिया। ये आइलैंड रिवर्सल का एरिया था, यहाँ से हमने इसलिए बाउंस किया है। अब देखो आइलैंड रिवर्सल बुकिश लैंग्वेज में नहीं होगा, काफ़ी लोग इस पे जैसे आगे करेंगे कि आइलैंड रिवर्सल नहीं है, बट आप लॉजिक समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों है वो जोन स्ट्रॉन्ग, बस वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर आप इसको आवरली टाइम फ्रेम में देखते हो, या किसी एक टाइम फ्रेम में, आउट ऑफ एवरीथिंग किसी एक टाइम फ्रेम में देखते हो, तो ये एक सॉर्ट ऑफ आइलैंड रिवर्सल लगी है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको, ये जो डिप है, बेसिकली दिस इज द प्लेस वेयर बिग मनी हैज एंटर्ड, एक्चुअली दे हैव एंटर्ड हियर, बट दिस वाज अ बेसिकली शॉर्ट कवरिंग एंड पुट राइटिंग यहीं कहीं से आना स्टार्ट हुई थी। सो अब आप एक चीज समझना, ये वाला जो लेवल है, ये कितनी बार टेस्ट हो चुका है, आप बस काउंट करना है इसको जाके छोटे टाइम फ्रेम में कितनी बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक बार, और ये आवरली में दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे इतनी बार टेस्ट हुआ है, मैं इसको हर एक घंटे को काउंट करूँगा। फिर हमने फॉल दिया, ऊपर है, यहाँ पे 4 5 6 7 कितने घंटे तक ये टेस्ट होता जा रहा है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ है। आपको नहीं लगता एक ही चीज़ को बार बार हैमर करोगे तो वो वीक होगी? आपको लगता है कि इतनी बार हम किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं और हम उसको तोड़े ही ना, पॉसिबल कैसे है? मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब देखने के बाद भी कोई मार्केट में बेरिश क्यों था। मतलब काफ़ी सारे लोग अभी भी बेरिश हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू फॉल, बट ऑनेस्टली आई एम नॉट फीलिंग दैट। मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके करेक्शन दे दे, बट ओवरऑल ये जो लो है ये मेरे हिसाब से मेंटेन रहेगा। टूटेगा भी, बहुत टेम्परेरी बेसिस पे टूटेगा, एंड उसको हम इंट्राडे रैली में पार्टिसिपेट कर लेंगे उसमें। लेकिन द प्राइमरी ट्रेंड इज बुलिश, ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ पे मेरा एक मैसेज था ये कैंडल पे कि शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, बहुत खतरनाक शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, बाई करना चालू करो। तो ये पूरी रैली हम लोगों ने स्टॉक्स के फॉर्म में पकड़ी है, किस कभी इंट्राडे में पकड़ा है, कभी फॉल में पकड़ी है छोटी बहुत, लेकिन द मेजर पॉइंट हियर इज द, मेरा सिंपल एनालिसिस था
कि बैंक निफ्टी ने इतनी बार इस लेवल को टेस्ट कर दिया है, और दूसरी चीज़, कोई ऑब्जर्व अगर कर रहा है तो आपके जो लोज है वो हायर होते जा रहे हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, खुद बताओ ना। ये ये लो, ये लो, ठीक है। हर जगह आपको जो चीज़ें हैं अच्छा रिट्रेसमेंट दे रही है। ये हो सकता था मार्केट में 3 दिन बाद ब्रेकआउट आता, 4 दिन बाद ब्रेकआउट आता, मैं प्राइस एक्शन में आज ही ब्रेकआउट दिखा दिया, डेटा में हमें आज ही ब्रेकआउट दिखा दिया, तो हमने उसको ट्रेड कर लिया। तो आज का दिन स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। एक्चुअली लास्ट 1 मंथ अगर आप इन जनरल देखोगे, barely I've made few losses, मतलब ऐसा नहीं लॉसेस नहीं होते, होते हैं, but it's part of the game. लेकिन the thing is, overall trading as a trader, uh, I'm willing to learn new things and I've been working on it. So this is a very simple concept, मार्केट कैसे ऊपर गया। अब हम लोग डाउ जोन्स को देखते हैं, ठीक है। डाउ जोन्स में आपको सेम चीज़ दिखाऊंगा 15 मिनट के चार्ट पे, सब आपकी आंखों के सामने होता है, देखो आप 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंसेप्ट सेम, ये वाला जो लेवल था, ठीक है, ये वाला, बताओ इसको कितनी बार टेस्ट किया हमने। यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, इधर आपने ऑलमोस्ट उसका हैमर कर दिया, इधर आपने बिल्डअप दिया है इसका, आपने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। मेरे डाउ के ट्रेड का लॉजिक ही ये था, मैंने यहाँ कहीं पे पहली एंट्री की थी, और यहाँ पे एक बार एंट्री किया था, और यहाँ पे भी एक बार एंट्री किया था। तो यही है रीज़न, बॉटम्स पकड़ने का तरीका यही है। बॉटम तो यहाँ बन गया था, अगर आपको याद हो, मैंने टेलीग्राम पे यहाँ भी अपडेट किया था कि मैंने लॉन्ग किया, ठीक है। ये जोन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ये हम लोग बाद में कवर करेंगे ये सब कंसेप्ट। लेकिन आप ये समझना कि क्या हो रहा है, हम एक ही सप्लाई को बार बार टेस्ट कर रहे हैं, और हमारे जो लोज हैं वो हायर होते जा रहे हैं या सेम रह रहे हैं, तो हम ब्रेकआउट क्यों नहीं देंगे। कोई भी रीज़न नहीं है ब्रेकआउट नहीं देने का। सब सब बुकिश बुक्स में आपने पढ़ा है, आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, बट उसको कैपिटलाइज करते समय प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। हम यहाँ बाय कर लेंगे, हमारी डायरेक्शन सही होगी, बट फिर हम यहाँ तक उसको बेयर नहीं कर पाएंगे। बाय ही ऐसी जगह करो ना, डिस्काउंट में बाय करो। डाउ यहाँ कहीं से लॉन्ग टाइम हैव टेकन इट अ लॉट, मैं उसको यहाँ तक लेके गया था। ये आपको चार्ट छोटा ऐसे ऐसा दिख रहा होगा, बट ये अराउंड देख लो 1000 पॉइंट्स है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन ट्रेडिंग। स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, बेरिश में तो जाना ये देख के, डिप आएगी बाय करना है, डिप आएगी बाय करना है। इंट्राडे में डाउ शॉर्ट कर लेता हूँ मैं भी कभी कभी, लेकिन पोजिशनली आई एम बुलिश ऑन डाउ, आई एम बुलिश ऑन एवरीथिंग, and I'm bullish on everything since this point. So even if I'm proved wrong, I'm not making losses in equity, I'm not making losses in futures. मैंने मेरे पास futures के कुछ stocks पड़े हैं, okay? So it's not necessary that every time you catch the bottom, अगर आपने यहाँ कहीं पे भी entry place किया, it's well and good. Making 2000 points or even analyzing 2000 points in Dow Jones is not a joke. If you're doing it consistently, you are doing good. And these are the pairs I have been trading in recent while. क्रिप्टोज में ये कर लेता हूँ, स्टॉक्स आप इग्नोर करो, ये स्टॉक्स मेरी होल्डिंग्स में है अभी, इसलिए मैंने इनको रखा था। ये सब चीज़ें मैं ट्रेड करता हूँ, तो इनके चार्ट्स मैं ऑनेस्टली पूरा दिन इनको एनालाइज करता रहता हूँ, इनमें क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ठीक है। सो द मेजर थिंग वॉज, मेनी पीपल आस्क मी टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू एनालाइज दैट बैंक्स आर गोइंग टू ब्रेक, बैंक्स बड़ा मुँह आने वाला है। मैंने लिखा था इंस्टाग्राम पे, बैंक्स एक्यूमुलेट कर लो, काफ़ी लोगों ने किया भी एंड दे हैव मेड गुड मनी। So hats off to them on for, and thank you for trusting on my analysis. मतलब you are considering me capable enough for my analysis. And apart from this, Nifty, if you ask me, Nifty में आज एक यूफोरिक मूव आया है लास्ट में, तो आपको एक 1 मिनट पे कंसेप्ट आज मैं बताता हूँ, ठीक है। समझना इस चीज़ को, ये होता कैसे है। देखो क्या होता है ना, मैंने अपने प्राइस एक्शन के कुछ वीडियोस हैं मेरे, मतलब मैं बनाऊंगा फिर से, मैं आपको एक एक चीज़ डेप्थ में बताने वाला हूँ। लेकिन आप ये समझना कि कभी भी अगर एक लो है, एक लो फॉर्म कर रही है मार्केट, वो एक बार टेस्ट होता है, कोई बात नहीं, 2 बार टेस्ट होता है। यहाँ पे अगर वो उसको तीसरी बार टेस्ट करने आ रहा है, इसको 2 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी, देखो 2 बार लोग डबल बॉटम देख के बाय कर चुके हैं, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स। इसका मतलब होता है लिक्विडिटी जनरेट की जा रही है मार्केट में। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस लगवाए जा रहे हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ब्रेक डाउन आएगा, ब्रेक डाउन आएगा तो ये लोगों को एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसी कैंडल बनेगी रेड। थर्ड बॉटम पे, मैं छोटा टाइम फ्रेम हो बड़ा टाइम फ्रेम हो कुछ भी हो, उसको बैक टेस्ट करके देख लेना। अगर वो नहीं होता है तो एक रेड कैंडल बनेगी और उसके ऑपोजिट एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी बड़ी सी। इसको मैं बोलता हूँ लिक्विडिटी ग्रैब, इसको मैं बोलता हूँ फेक आउट।
और इसके बाद सबके स्टॉप लॉसेस हंट करने के बाद, लोगों को ब्रेक डाउन ट्रेड करवाने के बाद, मार्केट से 99% लोग बाहर हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली जो 0.5% 1% लोग एक्चुअली मेक मनी इन द मार्केट मेकर्स, द इंस्टीट्यूट्स, दैट इज द स्पॉट वेयर दे स्टार्ट बाइंग, दे मेक द स्कैंडल। और फिर वो लोग मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और आपको शॉर्ट कवरिंग दिखती है और यूफोरिक मूव्स दिखते हैं। इसको आप जाके हर टाइम फ्रेम पे टेस्ट कर लेना, ये ट्रू है। ये मूव जो है आपको इतना इजीली है, आप इसको कैच कर सकते थे, डेटा आपके फेवर में था। डेटा की बात कभी और करेंगे हम। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए इसको। यहाँ पे आपने एक बॉटम बनाया, यहाँ पे आपने दूसरा बॉटम बनाया, सबने स्टॉप लॉसेस यहाँ डाले होंगे, यहाँ डाले होंगे, ये वाले तो हंट हो गए। इसके नीचे लोगों ने स्टॉप लॉसेस डालेंगे। थर्ड टाइम इसने क्या किया, एक डाउन कैंडल बनाई, हंट किया, ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर स्पॉट प्रीमियम चार्ट देखोगे, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। अब समझना, मैं ये नहीं बोल रहा 30 सेकंड्स पे जाके ट्रेड करो या कुछ करो, ठीक है, बट आप एक लॉजिक समझना, जो मैंने भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किया वो 30 सेकंड्स पे कैसा दिख रहा होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा 30 सेकंड्स पे ट्रेड करने के लिए, मैं करता हूँ पर्सनली 30 सेकंड्स पे भी ट्रेड करता हूँ मैं, और मेरे को काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि उसका चेंज ऑफ स्ट्रक्चर मुझे समझ आता है काफ़ी जल्दी। बट आपको ये सब नहीं करना है। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरी बार इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, क्योंकि इधर वालों की लिक्विडिटी इधर ग्रैब हो चुकी थी, हम लोग उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर चुके थे। इधर हमने इनके स्टॉप लॉसेस हिट किए, हम ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, और इधर मार्केट मेकर्स ने पैसा बनाया, और इधर जितने लोग एक्यूमुलेट करके बैठे थे लॉन्ग्स, सब बाहर हो गए। इधर बाहर हुए, इधर बाहर हुए, 80-90% लोग इधर बाहर हो गए होंगे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाहर हो गए। और उसके बाद मार्केट में एक्चुअली मूव आया। इतना फ्रस्ट्रेट करने के बाद मार्केट ने आपको यहाँ मूव दिया, और इसको एक्चुअली कोई एंजॉय कर ही नहीं पाया होगा। तो ये कंसेप्ट है, और मैं आपको हर चीज़ लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों क्यों हो रही है। अगर लॉजिक दे रहा हूँ तो आपको लॉजिकल नहीं लग रहा सब कुछ, मार्केट में हर चीज़ लॉजिकल है। कभी कभी इराटिक मूव्स आते हैं सेंटिमेंट्स के कारण, बट वो भी प्राइस एक्शन जो बनता है ना, कैंडल्स बनते हैं, बजट डे हो गया, कुछ भी होगा, वो सेंटिमेंट्स के कारण मूव आता है। उन दिन पे आप अवॉइड करो मार्केट को, लेकिन जिस दिन लॉजिकल मूव्स आ रहे हैं मार्केट में, उस दिन तो ट्रेड करो। और 90% लॉजिकली ही चलता है मार्केट। कैंडल देख के समझ आना चाहिए कि क्या होने वाला है। एक और मेरा सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, 1 मिनट है, 1 मिनट पे दिखा देता हूँ मैं आपको। या दिस 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 फॉर्मेशन, वेन एवर दिस हैपन्स, आई ट्रेड इट। डेटा मेरे फेवर में है, ठीक है। आप असेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हो 30 सेकंड्स में, आप इमेजिन करो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा होगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही सोचता हूँ ऑनेस्टली, मैं एक एल्गो की तरह दिमाग चलाने की कोशिश करता हूँ, मैं एल्गो पे काम भी कर रहा हूँ कि कैसे फंक्शन कर पाऊँ, मैं चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। बट ये बहुत अच्छा मूव था, और ये मैंने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे सेम सेटअप बन रहा है, ये देखो, ये एरिया, यहाँ पे आप फिर एक अपसाइड मूव ट्रेड कर सकते थे निफ्टी में। तो सेटअप्स बहुत बनते हैं, ये सेटअप्स पे मतलब देखो, ये काफ़ी डेप्थ एडवांस पार्ट है, इसमें हम बाद में आएंगे। अभी आप जो मैं छोटी छोटी चीज़ें सिखाता हूँ, उसको आप लोग नोट करते रहो और उनको अप्लाई करने की कोशिश करना मार्केट में। कहीं प्रॉब्लम आती है कमेंट्स में लिखो, मुझे बताओ कि क्या इशू है, और आने वाले टाइम में जो मेरी मार्केट एनालिसिस इन जनरल कह रही है, यहाँ से क्या हो सकता है मार्केट में। ऑनेस्टली मेरा टारगेट 38,200 है बैंक निफ्टी में, पहला टारगेट। वहाँ तक मैं कोई मेजर फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कोई 1500-2000 पॉइंट की फॉल आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये रीटेस्ट करने अगर आता भी है, आई एम अ बायर ऑफ द डिप, ठीक है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं शॉर्ट करके मार्केट में अर्न करने की कोशिश करूँगा तो इंट्राडे बेसिस, एंड दैट टू हेज माय फ्यूचर पोजीशंस, आई मे डू इट। बट ऑनेस्टली आई एम वेरी बुलिश इन द मार्केट, आई एम बुलिश सिंस दिस वेरी पॉइंट, एक्चुअली आई एम बुलिश सिंस दिस पॉइंट। यहाँ पे भी बाय करने का सोचा था, यहाँ पे भी बाय करने का सोचा था। एंड ये मूव आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, 8 मार्च 1:33 को मैंने मैसेज किया है, सॉरी 12:33 को मैंने मैसेज किया है, बिफोर दिस कैंडल वाज फॉर्म, या सॉरी 1:13 को मैंने मैसेज किया, आप मैसेज देख लेना जाके। यहाँ से ये बॉटम था मार्केट का, और ये रेड कैंडल पे मैंने प्रेडिक्ट किया कि ग्रीन कैंडल बनेगी, जस्ट बिकॉज वीकली सपोर्ट आ रहा है वहाँ पर। एंड दैट इज द ओनली एनालिसिस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, कि मतलब मैं ऐसे ध्यान देता हूँ कि मुझे चीज़ें डिस्काउंट में बाय करनी है, प्रीमियम में बाय नहीं करनी है। सस्ते में चीज़ खरीदो, महंगे में बेचो, महंगे में खरीद के और महंगे में बेचना मैं नहीं करता हूँ पर्सनली, ठीक है। मैं छोड़ देता हूँ महंगे में कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है। एंड सिमिलरली बाई शॉर्टिंग द मार्केट, so take care of the positions you have in the market. Many people are in ICICI Bank futures position. I personally took Axis Bank after
एनालाइजिंग ICICI एंड एक्सिस। मेरे पास एक अकाउंट में ICICI है, एक में एक्सिस बैंक है, सो आई हैव बीन मैनेजिंग इट एंड इट वर्कड रियली वेल फॉर मी ऑनेस्टली। टुडे आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस ब्रेकआउट, बट व्हेन दिस हैपेंड, गैप अप के बाद ये हो गया 15 मिनट पे, मैंने क्लियरली बोल दिया कि मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है ब्रेकआउट की, हो सकता है कि हम ब्रेकआउट आज ही दे दें, क्योंकि सफिशिएंट बिल्डअप है, सफिशिएंट एक्यूमुलेशन है। एंड 38,200 मेरा नेक्स्ट मेजर स्टॉप है, 38,000 38,200 ये रेंज है। तो ये अगला सप्लाई है, यहाँ से हमने गैप डाउन दिया था मार्केट को, तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं और फिर यहाँ रुकेंगे 38,300 के आसपास। तो ये एक रेंज है बेसिकली, और यहाँ से भी हमने गैप डाउन दिया था। तो ये थोड़े माइनर पॉजेस मिल सकते हैं आपको, डिप्स मिल सकते हैं, बट ट्राई टू बाय दोस, क्योंकि क्लियर ब्रेकआउट है। वीकली कैंडल देख लो, डेली देख लो, जो देखना है देख लो, ठीक है। सो पोजिशनली आई एम बुलिश इन द मार्केट, इंट्राडे आई वॉज बुलिश इन द मार्केट, एंड द डेज विच आई नो विल बी साइडवेज आई डोंट ट्रेड ऑन दोज डेज, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने एक्सपायरी पे टच भी नहीं किया मार्केट, ठीक है। तो जिस दिन नहीं है मार्केट ऑप्शन बाइंग की, उस दिन नहीं है मार्केट ऑप्शन बाइंग की। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट रिवॉर्ड्स यू इफ यू आर पेशेंट, इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी। टुडे इफ आई मिस्ड इट, मुझे डेफिनेटली थोड़ा बुरा लगता, बट मार्केट रोज खुलता है, ये सबको पता है। सैटरडे संडे को भी क्रिप्टो ट्रेड कर लो अगर मन करता है तो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने ही वाली है। आपको डेटा सजेस्ट करता है, प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है, हर चीज़ बताती है कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बैंक्स की मेजर एनालिसिस ये थी कि बैंक निफ्टी क्यों ब्रेकआउट देगा। मैंने बैंक्स के चार्ट्स भी नहीं देखे थे, बताऊँ आपको। बैंक मुझे पता भी नहीं था कौन सा बैंक कहाँ पे है। मैंने सिंपल बैंक निफ्टी एनालाइज किया, बैंक के चार्ट्स मैंने बाद में देखे कि कौन सा बैंक अच्छा हो सकता है। बैंक निफ्टी का जब मुँह आता हुआ देखा, मैंने आंख बंद करके एक्सिस बैंक का फ्यूचर उठा लिया, कुछ सोचा भी नहीं, ठीक है। तो एक बार मैंने चार्ट देखा, बट जब मैं एनालिसिस शेयर कर रहा था अपनी, मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर आपको बाय करने नहीं बोल सकता हूँ। वो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है कि उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कोई भी बैंक एक्यूमुलेट कर लो, इक्विटी में कर लो। इक्विटी में कर लोगे तब भी आपको 5-5, 10-10% का गेन मिल जाएगा आने वाले थोड़े दिनों में। और जिसने यहाँ यहाँ एक्यूमुलेशन चालू कर दिया होगा, दे आर इन गुड गेन्स यार। मतलब आज कितना चला है बैंक निफ्टी, आप देखो, अगर आपने इन लेवल्स के अराउंड पे एक्यूमुलेट किया है तो मतलब 1900 पॉइंट का हमने हाई मारा है। एंड अगर पोजिशनली आपने एक्यूमुलेट, इफ यू आर फॉलोइंग मी सिंस अ लॉन्ग टाइम, दिस इज द एरिया where I asked you to accumulate, and this was the area where I asked you to accumulate. So if your average is around this point or this point, it's a good 4,000-5,000 point gain यार। क्या चाहिए और आपको, 4,000 पॉइंट के गेन। बस एक्यूमुलेटेड रखो उसको और भूल जाओ। Marry the stock, marry whichever stock you have right now in your portfolio, and this is enough for Bank Nifty. I'll be analyzing the chart of Dow Jones and Euro USD gradually in the coming time, because these are the indices I have been trading in recent times, and mostly I'll be following a trader as well because they suit me the best indices। and stocks मैं positionally करता हूँ, intraday में मैं stocks नहीं करता हूँ। So आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको मैंने आज, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया है कि बैंक निफ्टी में मैंने बैंक्स एक्यूमुलेट करने क्यों बोला था, क्योंकि हम एक ही रीजन को बार बार टेस्ट कर रहे थे और हमारे लोज हायर होते जा रहे थे। इसमें डेटा का कोई रीज़न नहीं था जो मैंने एनालिसिस दी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने एक 1 मिनट की 2 स्ट्रैटेजीज बताई हैं आज आपको। एक छोटा सा असेंडिंग ट्रायंगल बनता है जब भी रेजिस्टेंस के नीचे, और उस रेजिस्टेंस को अगर हम मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर रहे हो तो उसका थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ टाइम पे ब्रेकआउट आता है। एंड तीसरा मैंने बताया है कि हम एक फेक डाउन देते हैं 1 मिनट पर, और फिर वही कैंडल रेंज के अंदर आ जाती है, तो हम लोगों की लिक्विडिटी ले लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन वेयर, दैट इज द प्लेस वेयर 99% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स आर आउट ऑफ द मार्केट, एंड देन अ बिग कैंडल इज फॉर्म सो दैट दे कांट एंटर इन द मार्केट्स। एंड वो कैंडल इस स्पीड से बनती है कि वो जब तक ऑर्डर प्लेस करते हैं उनको बहुत प्रीमियम प्राइसेस मिलते हैं, एंड प्रीमियम प्राइसेस पे वो अभी बाय कर लेंगे और आज शायद उनका प्रॉफिट हो जाएगा, बट आने वाले टाइम में इफ दे बाय एट द प्रीमियम प्राइसेस दे विल सफर ह्यूज लॉसेस। सो फर्स्ट रूलर्स विल बाय थिंग्स एट डिस्काउंट। सो वो ट्रिपल बॉटम का कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट ऊपर चला गया, वो मूव छोड़ देना, क्योंकि वो 100 में से एक बार होता है, बाकी 99 टाइम्स वो होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसको आप बैक टेस्ट कर लो, किसी भी टाइम फ्रेम पे बैक टेस्ट कर लो। ट्रिपल बॉटम के बाद यूजुअली ब्रेक डाउन आ जाता है, एंड इफ डेटा इज सपोर्टिव वो शॉर्ट कवरिंग की निशानी होती है। अगर बहुत बेरिश डेटा बिल्ड हो रहा है एंड एवरीवन इज शॉर्टिंग एट बॉटम, वो शॉर्ट कवरिंग की निशानी है। एंड आप टेलीग्राम पे जाके मैसेजेस देख लो और उनको आप ट्रैक करना कि हम उनकी एनालिसिस के हिसाब से आज कहाँ पे हैं। आई डोंट थिंक एनी ऑफ द एनालिसिस आई हैव गिवन इन पास्ट, आई थिंक यहाँ से
25th फेब से एनी ऑफ द एनालिसिस हैज़ वेंट रॉन्ग विथ रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट। जिस दिन मैंने बोला साइडवेज रहेगा, साइडवेज रहा है मार्केट। जिस दिन मैंने बोला शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आई है। अगर नहीं आए तो उसकी अगली सुबह आई है। And if you are able to capitalize, I have explained everything in this video, every move, every यहाँ पे क्या हुआ था मैंने ये explain कर दिया आपको। हायर लोज बन रहे हैं, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, सब कुछ explain कर दिया। तो ये दो 1 मिनट के कंसेप्ट को आज आप एक बार जाके बैक टेस्ट करना हर टाइम फ्रेम पे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। मेरी ऐसी हज़ारों ऑब्जर्वेशन है, मैं उनको धीरे धीरे करके हर वीडियो में आपको बता। ठीक है, thanks a lot. This is all for this video. I'll be seeing you soon in another market analysis video. And in coming time, if you ask me for the analysis, we are bullish. Try to buy every dip. I won't be giving the levels. ये level आएगा तो वो करना, वो level आएगा तो ये करना। कोई ज़रूरत ही नहीं है वो करने की यार, वो तो आप खुद कर सकते हो। लेवल सबको पता होते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, दिख रहा है सबको। लेकिन ये रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना आना चाहिए अगर वहाँ पे सिचुएशन बनी तो वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। लेवल्स आप खुद भी निकाल सकते हो। अभी सबको पता है ये सपोर्ट है 36,680। अगर यहाँ मार्केट मिलता है तो हम बाय करेंगे। तो मैं पर्सनली 37,000 का पुट शॉर्ट करके गया हूँ, लेकिन कम क्वांटिटी है, इतनी क्वांटिटीज नहीं है। सो आई विल बी मैनेजिंग द रिस्क। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख लो। जोन्स बताने के लिए मैं एक कल मतलब जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे देखता हूँ मैं, बट नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ऑल ऑफ यू गाइस नो इट। सो थैंक्स अ लॉट। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू ऑन द अदर साइड। थैंक यू।